right, thank God for everybody that's here today. We pray that the Lord add a मैं आप blessing. सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज सब आप जो है खुदा का कलाम सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुई। All right. Today's lesson is going to be about the covering of a woman's head. आज का जो हमारा अनुमान है वो ये है कि औरतें जो है वो सर ढकती हैं, इसका क्या मकसद है। Thank God for the opportunity to dive into the Word on that subject today. और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे एक मौका दिया कि मैं फिर आपको इसके मुताल्लिक जो है वो सिखा सकूँ। Could we have a couple people give us their understanding as to why it is that God described in His Word that a woman should cover her hair? Myself and Pastor here, we have a little reward for the person if you give the correct answer. Yes. जैसा कि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि सर ढककर जो है वो खुदा के कलाम को सुनाया जा सकता है या नहीं, और इसके मुताल्लिक बहुत से लोग जो है वो आप लोगों से पूछते भी हैं और सवाल भी आपसे करते होंगे, और मैं आप लोगों को इसके बारे में आज आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि किस तरह से जो है सर ढकने का मकसद क्या है और ये किस तरह से हमको अपनी जिंदगियों में ये अमल जो है वो दोहराना चाहिए। I guess what we'll do, Pastor Miguel, you can see if you get somebody to raise their hand to give the answer to that. Make sure they understand that we're going to try to have a little fun with it. We're going to give some rupees to the person and get the answer correct. Okay. अगर किसी ने कोई जो हमने सवाल किया सर ढकने के हवाले से, अगर किसी ने उसका सही जवाब दिया तो हम उसको गिफ्ट के तौर पर जो है वो चंद रुपए जो है वो इनाम में देंगे। We will gift who is given to answer is the right, and we will some rupees give to you. Saw some movies. There was some hands up. Yes. All right. So we've got Sister Rayhat with us. We've got Sister Adam with us. हमारे साथ सिस्टर राहत भी हैं और सिस्टर इरम भी है, जिन्होंने पिछले बुध जो है वो आपको कलाम सुनाया था। Also got यही दे दे मुझे Samara. सिस्टर और हमारे साथ सिस्टर सुमेरा भी हैं साथ। So I guess what we'll do is we'll take a couple people there and then we'll see if anyone that is in the Zoom meeting wants to do that. Okay, brother. आपने बड़े प्यार के साथ तहम्मुल के साथ खुदा का कलाम सुनना है और उसको समझना है और बाद में कोशिश करनी है कि आपने सही जवाब देने की कोशिश करनी है। Try? Yes, brother. You have any volunteers? Yes. The all is volunteer of the Jesus Christ. Amen. So maybe you might have to pick someone. See if someone will raise their hand and want to try to give it. Give a try to. Okay, brother. Let them know that the winner or whoever gets the answer right will get 1,000 rupees. Let's start out with 1,000 rupees. Wow. जो सही जवाब देगा हम उससे जो है 1,000 रुपया इनाम में देंगे। 1,000 we will give you if anybody give a correct answer to us. Oh, there's a hand. Got a hand? Oh, Yes.
Yes. What's question? She is asking me what is question. Why does God prescribe in His word that a woman cover her head? Yes. और सवाल ये है कि खुदा ने हमें क्यों सर ढकने को कहा और इसका क्या मकसद है? अगर किसी को इसके बारे में पता है वो अपना हाथ उठा सकती है। सर ढकने के बारे में क्या खुदा के कलाम में लिखा है कि हम क्यों अपना जो है वो सर ढकती हैं? खड़े हो जाएं। Not where in the word, but why? ये नहीं कि हर जगह पे, लेकिन हमें, हाँ जी, this sister has kept up to giving the answer. Okay, all right, amen. ऊंची आवाज में बोल। साडा करना मकसद ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ हाँ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा। ਉਹਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। एक मिनट है जरा। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਢੱਕਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਕਸਦ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਹੋਣ, ਥਾਂ ਹੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਪੱਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰ ਢੱਕੀਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Wow. Sister is saying that that it's our culture here to cover the head, and if we follow the true instructions of our husband, that is our responsibility, and then we follow the Jesus Christ, and then our husband is follow the Jesus Christ, and Jesus Christ follow the Lord. And she is saying that that is our honor here. We respect our family, we respect our elders, we respect our that here is a culture to cover the head, and we should cover the head in that giving the respect to our husbands, and not giving the head, and that's we have to be honesty to walking with the husbands, and that's why we had to cover the heads. And if we cover the head, we follow the Jesus Christ, and we should always be respect to our husbands, and that is a big responsibility God given us. Wow, she has won 1,000 rupees. Okay, she's been clapping. बाजी बानर 1,000 रुपया जीत लिया। Amen. Pastor Miguel, actually, does she have Jazz Cash? आपका कुछ Jazz Cash है? His husband has a Jazz Cash. Okay, all right. Get her husband's information and let her know. As soon as we're able to contact with our finance secretary, we will Jazz Cash the $1,000 directly to her husband's Jazz Cash account. आप जो है अपने खाउन का नंबर हमें दे दे, जो हमारी फाइनेंस सेक्रेटरी है उनको जो है वो 1,000 रुपया सेंड कर देंगे। All right. Ask her, does she want to be a Sunday school teacher? आपको तो एक संडे स्कूल टीचर होना चाहिए। Yes. So anytime she wants to be a Sunday school teacher, she is welcome to teach the things of God for this ministry. आप जो है संडे स्कूल टीचर बने और हमारी मिनिस्ट्री का आप हिस्सा बने। Amen. That was a great answer. So, sorry everyone else, you won't get a chance to answer because somebody already answered. Wow, that was amazing. Yes. So let's dive into the Word of God. Let's go into the Word of God to show and reveal. हम खुदा का कलाम जो है वो सीखते हैं। Show and reveal that what the woman of God said was correct and it's in the Bible exactly as she explained. आपने बाइबल के हवाला से आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब हम उसका मुतालिया करेंगे। All right. So turn with me in your Bibles to 1 Corinthians chapter 11. पहला ग्रंथियों उसका 11 बाब।
1 Corinthians chapter 11 verses 2 जी यस ब्रदर, पहला ग्रंथियों उसका 11 बाब उसकी 2 से 16 आयत तक हम पढ़ेंगे। Let them know that there are several scriptures that we're going to try to get into today about the covering of a woman's head, but this one is the main passage of scripture. आज हम इस आयत के वसीला से हम सीखेंगे कि हमको किस तरह से ज़रूरत है कि हम अपने सर को ढकें और किस तरह से हमें ज़रूरत है कि अपने घराने में अपने खावन को अपने साथ लेकर चलें। यस ब्रदर। Going to read. All right. Okay. पहला ग्रंथियों उसका 11 बाब और उसकी 2 से 16 आयत तक हम सुनेंगे। सभी खामोशी के साथ खुदा के कलाम को सुनें। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो, और जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुँचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। इस आयत को मैं फिर रिपीट करूँगा। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। जो मर्द सर ढकने हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है, और जो औरत बेसर ढकने या दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है। अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटाए। बात बाजी चेयर है तो चेयर ते नाल फिर नाल बैठो ना, चेयर ते बैठ जाओ, फिर बच्चे थोड़े हो जाने। और अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटाए। ना मारो तो नाना होर बच्चे रोणगे। जी, अगर औरत का बाल कटाना या सर मुंडाना शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। बता मर्द को अपना सर ढकना ना चाहे क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है, इसलिए कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है, और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई। बस औरतों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे, तो भी खुदावंद में ना औरत मर्द के बगैर है ना मर्द औरत के, क्योंकि जैसे औरत मर्द से है वैसे ही मर्द भी औरत के वसीला से है, मगर सब चीजें खुदा की तरफ से हैं। तुम आप ही इंसाफ करो कि औरत का बेसर ढकना खुदा से दुआ करना मुनासिब है। क्या तुम तबई तौर पर भी मालूम नहीं कि अगर मर्द लंबे बाल रखे तो उसकी बेहुरमती है, और अगर औरत के लंबे बाल हों तो उसकी जीनत है, क्योंकि बाल उसे पर्दा के लिए दिए गए हैं। लेकिन अगर कोई हुज्जती निकले और ये जान के ना हमारा ऐसा दस्तूर है और ना खुदावंद की कलीसियाओं का। आमीन। Amen. Testament, if a woman's hair was shaven, it was speaking for being disgraced. She had lost her covering. She was no longer identified as a woman who was submission or who exercised authority over her by her husband or by her leader. आज हमें इस आयत से हमने सीखा कि हमें किस तरह से अपने सर को ढकने की ज़रूरत है, और इसके बारे में मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि हमें किन किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों में अमल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। It was disgraceful for a woman in the Old Testament to be punished. God prescribed in His Word that if a Jewish man took a woman to be his captive, the first thing he would do is he would cut her hair off. To let her know that she would be shamed, but he was also able to marry her. अगर हम पुरानी रवायात को देखें और यहूदियों की रवायत को देखें तो जब खुदा यीशु मसीह कलाम करते थे तो वो अपना सर ढांप कर जो थे वो कलाम करते थे, क्योंकि वो उनका दस्तूर था, उनकी रवायात थी, उनका एक कस्टम था। ठीक है। It was also the Jewish custom prescribed in the Bible
that if a woman cheated on her husband with a foreign man, that God prescribed in His Word that her hair should be shaven off. अगर खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि अगर कोई औरत अपने मर्द के साथ दगाबाजी करती है तो खुदा उसे सजा देता है। खुदा उसकी जिंदगी में बहुत सी सजाएं जो है वो नाज़िल करता है। So the hair of a woman is symbolic for the authority, as the woman of God said earlier, that her husband, but most importantly, that Christ has over her. और ये जो है हम अपना सर ढकते हैं, ये एक अलामती तौर पर होता है, लेकिन असल मकसद इसका ये है कि अगर आप अपने शोहर के साथ वफादार नहीं तो आपका सर ढककर कलाम सुनाना बेफायदा है। आपको जरूरत है कि सबसे पहले आप अपने हस्बैंड की, अपने शोहर की खिदमत करें, उसकी इज्जत करें। अगर आप उसकी इज्जत करती हैं तो आप खुदा की इज्जत करती हैं। अगर आप खुदा की इज्जत करती हैं तो आप खुदा की इज्जत करती हैं। In the spirit realm, it is not only just a reminder to the woman, but it's also a reminder to the man that Christ is our covering. Christ exercises authority over our lives. इस तरह से मैं औरतों की हौसला अफजाई नहीं कर रहा, ये कलाम मर्दों के लिए भी है। जैसे औरतों का सर एक मर्द है, इसी तरह मर्दों का सर जो है वो खुदावंद यीशु अल मसीह है। मर्दों को चाहिए कि वो खुदा के साथ बड़ी ईमानदारी और खुलूसे दिल के साथ खुदा का कलाम को सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। The Bible says no such thing as a male or female, barbarian or Jew. और जैसे खुदा का कलाम कहता है, एक मर्द जो है वो, एक औरत जो है वो मर्द के लिए बनाई गई। So in the spirit realm, both male and female are seen as the bride of Christ. जैसे कि एक मर्द एक औरत है, वो खुदा के लिए अपने आप को पेश करने की जरूरत है, नहीं उनके खुदा के हुक्मों पर अमल करने की जरूरत है। जैसे कि खुदा ने यीशु मसीह ने सारी दुनिया से मोहब्बत रखी। So God prescribed to His people that the man of the woman. और खुदा अपने लोगों से बयान करता है कि आप ईमानदारी के साथ, खुलूसनियत के साथ जो है औरतों को, कि आप अपने मर्दों की हुक्म पर चलें, उसकी हुक्मदूली ना करें, उनकी बातों को सुनें। So therefore, by covering her hair, it was symbolic for the authority not only of her husband, but that Christ had over her. जैसा कि आप अपना सर ढकती हैं तो ये आपकी इज्जत के लिए है, और आपको जरूरत है कि आप सर ढकने के साथ साथ अपने खामन की भी इज्जत करें, उसको अपने साथ बिठाकर खुदा का कलाम सिखाने की कोशिश करें। And in verse 3 of this passage of scripture, it clearly says, when Paul says, but I want you to understand that Christ is head, Christ is supreme over every man. अगर हम 3 आयत का मुताला करते हैं तो यहाँ पर पौलुस रसूल फरमाते हैं, बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ कि हर मर्द का सर मसीह और हर औरत का सर मर्द, और मसीह का सर खुदा है। And then he begins to explain that just as Christ is supreme, just as Christ has authority not only over just male but female as well, but Christ also has supreme and authority over all that the Father God created, as well as over the church. यहाँ पर खुदा ने यीशु मसीह आपको अथॉरिटी दे रहा है, हमें दे रहा है। वो खुदा ने यीशु मसीह मर्दों का सर है, खुदा ने यीशु मसीह औरतों का, जैसे कि औरतों का सर मर्द है और मर्द का सर कौन है? खुदा ने यीशु मसीह है। ये सारी जो ताकत हिम्मत जो है वो खुदा ने यीशु मसीह जो है हमें दे रहा है, और हमें समझने की जरूरत है। But many times God gives a physical example to help us understand what is taking place in the spirit realm. And so he says that same way that Christ is supreme, Christ is authority over the church, the husband shall exercise that very authority over the wife. जैसे कि हम जिस्मानी तौर पर अगर इस बात को लेते हैं तो एक घर का जो सरबराह होता है वो पूरे घर को चलाने की हिम्मत रखता है, ताकत उसका इख्तियार होता है। हम उसके हुक्मदूली नहीं कर सकते, हम उसकी बातों को सुनते हैं। इसी तरह से खुदा यीशु मसीह का हम पर इख्तियार है। हमें जरूरत है कि हम खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपनाएं, उनकी हुक्मों के मुताबिक जो है वो चलें, और खुदा यीशु मसीह का डर हमारे दिल में होना चाहिए। But a woman should never yield to the authority of her husband over her if it causes her contrary to the supreme authority that Christ has over all. और इसी तरह से जो है वो औरतों को चाहिए कि वो अपने खावंद के ताबे रहें और उनकी बातों को सुनें, समझें, सब मिलकर जो है वो अपने घराने की खुशहाली के लिए अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें।
We see that as an example in the Old Testament between Abigail and her husband Nabal. अगर हम पुराने अहदनामा में से देखें तो वहाँ पे भी हमें बहुत सी ऐसी गवाहियाँ मिलती हैं जिसमें जो है वो मर्द और खवातीन के हवाले से हैं। Abigail, the Bible says, was a woman of God, and the Bible says that her husband was a man of the world. He was a stubborn man. He was a rebellious man. जो अगर हम कहानी को देखते हैं कि वहाँ पर खुदा जो है किस तरह से औरतों को इस्तेमाल करता है और इनके खावंद जो थे वो बहुत खुदा से दूर थे, लेकिन औरतों के वसीला से उन्होंने खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में लिया। So the Bible says in verse 4 and 5, as it gives examples, that a man or a woman who stands in public and shares or prays about the things of God, it's a disgrace upon them if their head is not covered. अगर हम 4 और 5 आयत का मुताला करते हैं तो इसमें लिखा है, जो मर्द सर ढके हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है, और जो औरत बेसर ढके दुआ या नबूवत करती है वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सर मंडी के बराबर है। आज हमें जरूरत है कि अगर हम सर ढक कर दुआ कर रहे हैं लेकिन हमारी जिंदगियों में अपने खावंद के लिए कोई इज्जत नहीं, उनके लिए कोई हम उनसे दगाबाजी कर रहे हैं, हम फ्रेब दे रहे हैं उनको, तो हमारा सर ढकना बेफायदा है। हमारे लिए ये कोई कारआमद, हमें जरूरत है कि अगर हम खुदा के साथ सच्चाई के साथ चलती हैं तो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में भी लेना हमारे लिए उतना ही जरूरी है। So it says in verse 5 that a woman that stands in public worship or prayer, if she does not cover her head, it is disrespectful to the position that her husband has over her. अगर खुदा की खादमा जो खुदा का कलाम जो है बाहर सुनाती है और सर ढकती है, लेकिन अगर वो घर में आकर अपने खामद की इज्जत नहीं करती तो उसकी वो मनाती करना बेकार है, उसका वो दुआ करना बेकार है, बिल्कुल बेकार है, जाया है अगर वो अपने खामद की अपने घराने में किसी की इज्जत नहीं करती। So the covering of is more than a custom, it's more than a tradition. It conveys to all who see us that Christ is the head of our lives. He has supreme authority over us. और सर ढकना हमारा एक रवायती है, कल्चर है, हमारे माशरे का एक हिस्सा है। जैसे कि पाकिस्तान का कल्चर है कि औरतें सर ढकती हैं, उनकी शान है सर ढकना, लेकिन बहुत से इलाकों में ऐसे रवायात नहीं। लेकिन अगर फिर मैं वही बात आपसे कहना चाहूँगा कि सर ढकें, और अपने जैसे आप सर ढककर अपनी इज्जत ऑनर को अपना बढ़ाना चाहते हैं, इसी तरह से आप अपने खामन की, अपने घर में बड़ों की इज्जत करें, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें। So if we stand in public worship or prayer, as we read the Bible, if we do not cover our heads, it is showing disrespect to God Almighty. अगर हम खुदा का कलाम सुना रहे हैं और हमने अपने सर को नहीं ढका तो इसका मतलब ये है कि हम खुदावंद की हुक्मदूली कर रहे हैं, हम खुदा को नहीं मानते, हम खुदा के सुनहरी उसूलों को नहीं समझते। It should also encourage us to be mindful in everything that we do, in everything that we say, that as we're mindful of covering our heads as we go out in public, we also should be mindful that Christ has authority, supreme rule over our lives. जैसा कि हम ये समझते हैं कि सर ढकने से हमारी इज्जत में कमी आएगी, इसी तरह से हमें ये भी समझना चाहिए कि हम किस तरह से खुदा यीशु मसीह के साथ हमें चलने की जरूरत है। हमें इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है कि हम खुदा यीशु मसीह को भी जो है वो अपनी इज्जत ऑनर समझे, ताकि हम उसके बगैर हम कुछ भी नहीं। This is not just simply for the woman, but this is for the man as well. We don't ever want to do anything that brings shame to our Lord and Savior Jesus Christ, that brings shame to our household. और ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी है, जो शर्म महसूस करते हैं, खुदा की मनाती करने में शर्म महसूस करते हैं, खुदा का नाम लेने में शर्म महसूस करते हैं। जरूरत है कि अगर हमने जिंदगी में खुदा यीशु मसीह को प्रॉपर तौर पर लिया तो हमें शर्माने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदा यीशु मसीह को बड़े फख्र के साथ हमारी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। So in verse 7 he says, a woman or a man has no need to cover his head because he reflects the image and the glory of God. अगर हम 7 आयत का मुताला करें तो उसमें लिखा है, अलबत्ता मर्द को अपना सर ढकना चाहिए क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है। So even though that a woman is prescribed in the word of God to cover her hair, the Bible says that he has a responsibility too as well, not to bring dishonor to Christ, because he walks in the image of God. अगर हम अपना सर ढकते हैं तो हम खुदा की इज्जत में इजाफा करते हैं, हम खुदा को एहतराम के साथ खुदा के आगे अपने आप को पेश करते हैं। इसी तरह से मर्दों को भी चाहिए कि वो अपनी जो चाल चलन है वो उसको दुरुस्त करें, ताकि वो खुदा के कलाम को समझें और उसके मुताबिक जो है वो अपनी जिंदगी को तब्दील करें। So the Bible prescribes that the man should not have long hair
because it was disrespectful to the authority that Christ has over them. जैसा कि कलाम में लिखा है 8 आयत में लिखा है, इसलिए कि मर्द औरत नहीं बल्कि औरत मर्द है, और मर्द के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई। Because he is the reflection of the glory and of the image of God Almighty. और ये हमारे लिए खुदा का एक नमूना है कि हम इसको अपनी जिंदगियों में लें और हम समझे कि खुदा का कलाम हमसे क्या बयान करता है। Amen, amen. So we skip down to verse 11. It says, "In the light of the Lord, however, woman is not equal to man, nor is man equal to woman. For as woman was made for man, in the same way of the woman, and it is God who brings everything into existence." अगर हम 11 आयत का मुताला करते हैं तो उसमें लिखा है, क्यों भी खुदावंद में ना औरत मर्द के बगैर है और ना मर्द औरत के बगैर, क्योंकि जैसे मर्द औरत से है वैसे ही मर्द भी औरत के वसीला से है, मगर सब चीजें खुदा की तरफ से हैं। Right. So let's go to a couple Bible verses that in the spirit realm that Christ is the head of the body of Christ. Christ is the head of not only just the woman but the man himself. And anything that we do that brings shame, that brings dishonor to him, we want to always. मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे खुदा यीशु मसीह हैं। जिस तरह से औरत का सर मर्द है और मर्द का सर जो है वो खुदा है, और खुदा यीशु मसीह का सर जो है वो खुदावंद खुदा है। तो जरूरत है कि जिस तरह की सारी अथॉरिटी जो है वो खुदा यीशु मसीह के दी हुई है, और हमें समझने की जरूरत है जैसे कि एक मर्द के घर में इख्तियार है, इसी तरह से खुदा यीशु मसीह का मर्द पर है, और खुदा यीशु मसीह पर जो है वो खुदा का है, और सारी अथॉरिटी जो है वो खुदावंद की तरफ से है, और हमें इसे समझने की जरूरत है। So even Christ has prescribed for the woman to always be mindful by covering her hair that Christ has his authority over her, and also that same responsibility to never do anything that brings shame or dishonor to his Lord and Savior Jesus Christ, and to also always be mindful of the authority as we look at the women that Christ has over us as well. आज हमें ज़रूरत है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह से खुदा ने हमें ये अथॉरिटी दी है, ये इख्तियार दिया है कि हम औरतें जो हैं वो एक मर्द के लिए एक नेक बीवी साबित हो जाएं, तो इसी तरह से हमें मर्दों की भी इसी तरह से ज़रूरत है कि वो खुदा के कलाम को समझें और उसको समझने की ज़रूरत है, अपने दिलों में उतारें और बड़ी ईमानदारी के साथ, मुखलस तरीके के साथ, दिलो जान के साथ जो है वो खुदा उनको अपनी ज़िंदगियों में अपनाएं और समझे खुदा उनका कलाम हमसे क्या कहता है। और ये सारा कुछ जो है खुदा यीशु मसीह ने आप सब पर खुदा यीशु मसीह का क्या है इख्तियार है। All right, so let's go to Ephesians chapter 1 verse 22. इफिसियों पहला बाब और उसकी 22 आयत का मुताला करेंगे। इफिसियों पहला बाब उसकी 22 आयत। इफिसियों पहला बाब उसकी 22 आयत को देखेंगे। इफिसियों पहला बाब उसकी 22 आयत। सभी से गुजारिश है कि अपने माइक जो हैं वो म्यूट कर दें काइंडली। I got it, Pastor. थैंक यू। इफिसियों पहला बाब उसकी 22 आयत का मुताला करेंगे। Yes, brother, I'm going to read. Yes, sir. इफिसियों पहला बाब उसकी 22 आयत में अगर हम देखते हैं तो लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। आमीन।
Amen. So in this passage of scripture, it clearly points out that the women of God, in the process of keeping their traditions, in the process of understanding why it is that God prescribed that we keep our hairs covered when we're out in public or when we're reading or engaging in the things of God, it's because of the supreme authority that Christ has over not only just the woman, but the man and woman, as well as the body of Christ collectively, which we are part of. यहाँ पर हमने इस आयत का मुताला किया तो हमें पता चलता है कि किस तरह से खुदा यीशु मसीह का हम पर अख्तियार है, किस तरह से हम कलीसियाएं कौन होती हैं? चर्च होता है ना, चर्च में। तो हमें जरूरत है कि जिस तरह से हमारी जिम्मेदारियां हैं कि एक अच्छी कलीसिया जो है वो साबित हो, एक अच्छा किरदार अपना अदा करे कलीसिया में, तो जरूरत है कि हम जिस तरह से अपने खामन के ताबिया रहती हैं, इसी तरह से हमें जरूरत है कि खुदा यीशु मसीह की भी बातों को सीखें, समझें और उसको समझने की जरूरत है ताकि हम अच्छे तरीके के साथ जो है वो अपने खामन की मदद कर सकें, उनको खुदा की तरफ ला सकें। और ये सब हमारी जिम्मेदारी है, किस तरह से हम, जैसे हमारी जिंदगी रूहानी होगी तो हम अपने खामन की जिंदगी भी रूहानी कर सकती हैं। And so this is very important, mothers and fathers, as we teach our children to keep the custom that was passed down by our elders, by our customs, that we always want to press in their young hearts and their young minds that the covering of their hair is symbolic for the authority that Christ has over us. और एक माँ और बाप होने के नाते हमें ये भी जरूरत है कि हम अपने बच्चों को खुदा का कलाम सिखाएं, उन्हें रवायात सिखाएं कि हमारा क्या रवायात है, खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, और हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनको अच्छी तालीम दें, उनको बाइबल के मतलब सिखाएं, बाइबल की किताबों को उनके बारे में बताएं, हम उनके पास बिठाएं और छोटी छोटी आयात जो हैं उनको पढ़कर सुनाएं और खुद भी सुने, जिससे खुदा यीशु मसीह आपके घराने में बरकत देगा। We also understand that Christ gave us this teaching, gave us this lesson, that we will also in the physical realm be mindful of the authority that our husbands have over us. The reason being is that there's a mystery between the husband and wife that God prescribed way back in Genesis chapter 1. And we're going to see that in Ephesians here shortly. Yes. और ये हमें समझने की जरूरत है कि जिस तरह से औरत के लिए एक मर्द जो है वो अख्तियार रखता है, अगर हम अपने बच्चों के ऊपर अपने अख्तियार को इस्तेमाल करें तो हमारी जिंदगियां तब्दील हो सकती हैं। ऐसे ही अगर हम पैदाइश की किताब उसके पहले बाब में देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर 1 chapter 1 verses oh, I'm sorry. Chapter 2. Chapter 2. Yeah. 21 through 25. Yes, 18 to 25. 21. पैदाइश की किताब। No, you're right. I'm sorry. 18 to 25, brother. I'm sorry. You're right. Yes, 18 to 25. पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 18 से 25 आयत का जब हम मुताला करते हैं तो हमें और रहनुमाई मिलती है औरतों के हवाले से कि खुदा ने किस तरह से औरतों को जो है वो समझाया, और खुदा का कलाम जो है वो सबके लिए है, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो छोटे हैं। और ज़रूरत है कि हम जब खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों में लेती हैं एक माँ होने के नाते पर, तो हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती हैं। यस ब्रदर, आई एम गोइंग टू रीड। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 18 से 25 आयत का हम मुताला करेंगे। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। और खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए हुए और उनको आदम के पास लाया कि देखें कि वो उनके लिए क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चिपाओं और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानद ना मिला। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपनी माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा
और वो एक तन होंगे, और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और वो शर्माते ना थे। आमीन। Amen. We see in this passage of scripture, the Bible says that woman was given to man to assist him in the things of God. यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा गया है जो औरत जो है वो मर्द से जो थी वो बनाई गई ताकि वो उसकी मददगार साबित हो। And the mystery is revealed in verse 24 and 25 and says, "For this cause shall a man leave his mother and his father, and he shall cleave to his wife, and they shall be one." अगर हम 24 आयत का मुताला करते हैं तो उसमें लिखा है, अब तो ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। क्योंकि औरत जो है वो एक मर्द की पसली से बनाएगी ताकि वो उसकी मददगार साबित हो, अच्छी मददगार साबित हो। ये नहीं कि बस ऐसी मददगार साबित हो को बेड़ा ही गर्क कर देगा, ठीक है ना। यानी कि जरूरत है कि समझ खुदा के कलाम को समझने की जरूरत है। But the submission or the authority over the woman wasn't given in the origin of creation. It was given after Adam and Eve disobeyed God. So if we go over to Genesis chapter 3, verses 16. After Adam and Eve disobeyed God, we see here that the Bible says that the husband was given authority over the wife after they disobeyed God. जब उन्होंने खुदा के हुक्म अदूली की तो यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है कि किस तरह से आदम ने जो है वो हवा को जो थी वो अथॉरिटी दी, इख्तियार दिया कि किस तरह से अब हमें अपनी जिंदगी को बसर करना है, क्योंकि उन्होंने खुदा की हुक्म अदूली की। जिस तरह से खुदा ने आदम की पसली में से हवा को चुना, एक औरत को बनाया। Genesis chapter 3 verse 16. पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और हम उसकी 16 आयत का मुताला करते हैं तो उसमें लिखा है, Yes brother, I'm going to read. फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तो दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रग़बत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। आमीन। All right. So in this Bible verse, we see that after they disobeyed God and they ate of the tree, of the fruit of the tree of knowledge of good and evil, that God gave authority over the woman. But in that, the mystery was that God was laying the foundation for Christ to exercise authority and rule over all creation. Yes. Okay, we got him back. Yes, brother. Okay, all right. So now let's go to our next passage of scripture. Ephesians chapter 4, verse 15, pointing out the very same thing. Ephesians? Yep, chapter 4. इफिसियों उसका 4 बाब। The point that we want to emphasize in these scriptures to all the women is that the covering of their hair is symbolic for the authority that Christ has. ये सारी जो आयत हैं आपकी हौसला अफजाई के लिए आपको बताई जा रही हैं कि किस लिए औरत को जरूरी है कि वो अपना सर ढांपे। अगर वो अपना सर ढांपती है तो उसको जरूरत है कि वो अपने घराने में अपने खावन की इज्जत करे, अपने सास ससुर की इज्जत करे, उनकी खिदमत करे, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे। और आगे हम देखेंगे इफिसियों 4 बाब, Ephesians 4:15 उसकी 15 आयत को अगर हम देखते हैं। Yes brother, I'm going to read. बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ वाबस्ता होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। Yes brother, amen. In this passage of scripture, Paul is speaking to the body of Christ, man as well as woman. And he says that we should speak the word of God in love and love people in all things
which Christ is the head of the man as well as the woman, the church. यहाँ पर पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जिस तरह से एक मर्द का सर जो है वो खुदा यीशु मसीह है, हमें क्या जरूरत है कि हम मोहब्बत और सच्चाई के साथ खुदा के साथ जुड़ जाएं, खुदा के साथ व्यवस्था हो जाएं, खुदा के साथ ताल्लुक कायम कर लें, और खुदा हमारे साथ मोहब्बत रखता है और वो हमारी तरक्की को क्या करेगा, बढ़ाएगा, हमारे लिए बरकतें अंडेलेगा ताकि हम अपनी जिंदगी को तब्दील करें। अगर हम सच्चाई के साथ खुदा के साथ चलते हैं, ये लाजम नहीं कि ये खुदा का कलाम जो एक औरत के लिए है, इसी तरह से जैसे खुदा ने मर्द को ये इख्तियार दिया है औरत पर, इसी तरह से खुदा ने मर्द पर भी अपना इख्तियार रखा है। और ये सारा इख्तियार अगर हम औरत मर्द की इज्जत नहीं करती तो वो खुदा यीशु मसीह की इज्जत नहीं करती, अगर वो खुदा यीशु मसीह की नहीं इज्जत करती तो वो खुदा के बाप की इज्जत नहीं करती। इसी तरह से हम सबको जरूरत है, चाहे वो मर्द है औरत है, खुदा के कलाम को समझे और सीखें और अपनी जिंदगियों में लें, जिससे हमारी जिंदगी तब्दील हो सकती है, हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं। यस ब्रदर। All right, now last passage of scripture that explains everything that the woman of God said, Ephesians chapter 5 verse 22 through 33. Yes. 33. This one right here clearly explains the आखिरी हवाला जो है वो आपको मैं देने जा रहा हूँ, इफिसियों 5 बाब उसकी 22 आयत से लेकर 23 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं, 22 से 23 तक। I know the little kids, they're getting restless, so this is our last one. Yes, okay. 22 से 23 आयत 33 आयत तक सुना जाएगा। Yes brother, I'm going to read. Okay. बड़ी खामोशी के साथ सुनिएगा। ऐ बीवियों, अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हों। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। इसी तरह शोहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखें। वो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है और अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसा कि मसीह कलीसिया, इसलिए कि हम उसके बदन के अज़ू हैं। इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूँ। बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी माँ की मोहब्बत रखे, और बीवी उस बात का ख्याल रखे कि अपने शोहर से डरती रहे। आमीन। Amen, amen. So we're just going to make a couple points in verse 2:22. It says, "Wives, submit yourselves unto your husbands, the same way you submit to Christ." The covering of the hairs of a woman are a representation or symbolism for the authority that not only God has over the woman, but the husband as the husband of the woman as well. अगर हम 22 आयत का मुताला करते हैं, उसमें लिखा है कि बीवी अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की। जैसे हम खुदा के ताबे रहते हैं, हमें जरूरत है कि हम अपने शोहरों की भी ताबे रहें। जैसे हम अपने सर को ढकना अपनी इज्जत समझती हैं, तो इसी तरह हमें जरूरत है कि अपने शोहरों की इज्जत भी करें। और जिस तरह से खुदा खुश होता है, जब खुदा खुश होता है तो खुदा का खुदा खुश होता है, और खुदा हम पर मेहरबान होता है, हमें बहुत सी बरकत से नवाजता है। All right, and so in 23 it explains that mystery. It says, "For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church." And we know the church is not made up of women only. The church is made up of men as well as women. So a man, his covering, his head, the authority that Christ has over him, is the symbolism behind the purpose of the women he has. It's a symbolic statement that Christ has sovereign, has rule, has authority over our lives as the body of Christ. Man as अगर हम 23 आयत का मुताला करें, उसमें लिखा है, क्योंकि शोहर बीवी का सर है जैसे मसीह के कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। ये जरूरी नहीं कि जो कलीसिया है जो है वो एक औरत के लिए बनाई गई, ठीक है, एक मर्द के लिए बनाई गई, बल्कि ये दोनों के लिए बनाई गई, जिसमें खुदा यीशु मसीह का अख्तियार है। खुदा यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि किस तरह से एक औरत को जो है वो सर ढकने के लिए ढकना जरूरी है, इसी तरह से एक मर्द का भी जो है वो सर ढकना जरूरी है। सर ढकने से मुराद कि हमने किस तरह से अपने खावंद की इज्जत करनी है। अगर हम खुदा का अपने खावंद की इज्जत करते हैं तो हम अपने
खुदा की इज्जत करते हैं। और जिस तरह से हम समझते हैं कि सर ढकने में हमारी इज्जत है, इसी तरह से खुदा से डरने और खुदा के हुक्म पर अमल करने और अपने खावंद की इज्जत करने, इसी तरह से मर्द पर भी यह लागू है कि वो अपनी बीवी से मोहब्बत रखे और खुदा से डरे और खुदा का खौफ जो है अपने दिल में रखे। So as in verse 24, there's a great principle for the woman of God. The same way that the woman of God submits to Christ is the same way that the woman of God is supposed to submit to her husband. And that is a commandment from God. और ये हम खुदा के साथ जो है वो हमारी एक मुतालबा होता है, खुदा के साथ हम एक कमिटमेंट कर लेते हैं। अगर हम 24 आयत का मुताला करते हैं तो उसमें लिखा है जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबिया हों। आज हमें जरूरत है कि हम खुदा के साथ ये वादा करें, ये इकरार करें कि हमसे जो भी गलतियां खताएं आज से हम अपनी जिंदगियों को तब्दील करना शुरू करें। दुआ में अपने शोहरों को अपने साथ बिठाने की कोशिश करें, उनको समझाएं कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है और हम क्या कर रहे हैं। Sometimes the challenge is we'll submit to Christ, but we won't submit to our husband. So we have to be very careful of that. The same way that we submit to Christ, the same humility, the same submission that we give to Christ, we're to give that same humility, that same submission to our husband. और इसी तरह से अब जितने भी हमने खुदा की आयत का मुताला किया, खुदा के कलाम का मुताला किया, हमने बहुत कुछ सीखा। हमें जरूरत है कि इनको अपनी जिंदगियों में अपनाएं। जिस तरह से खुदा ने एक औरत एक मर्द का सर बनने की हिम्मत और ताकत रखता है, इस तरह से वो औरत जो है उसको जरूरी है कि वो अपने मर्द की इज्जत करे और मर्द को जरूरी है कि वो खुदा से, अगर हम मर्द की इज्जत करते हैं समझने आप खुदा की इज्जत करती हैं। अगर आप अपने सर को डांटती हैं तो आप अपने घराने की इज्जत रखती हैं। आप एक माशरे में अपने आप को एक इज्जतदार ठहराने के लिए ये सारा कुछ करती हैं। तो जरूरी है कि अपने आप को खुदावंद के लिए भी तैयार करें। But we know that we serve a God that is not partial. God is not more concerned about the authority that a man has over the woman. God is an equal God. He also has given a responsibility to the man that the man should love his wife the same way that Christ loved the church and gave his life for it. खुदा जब सिर्फ खुदा का कलाम जो है वो मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए नहीं, बल्कि सब के लिए है, बच्चों के लिए है, औरतों के लिए है, बड़ों के लिए है, छोटों के लिए। खुदा सबसे मोहब्बत रखता है और इसी तरह से खुदा ने मर्दों के लिए भी गुलाम किया है। ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया। इसी तरह से मर्दों पर भी ये लाजिम है कि वो अपनी बीवियों से वफादारी के साथ चलें, उनसे मोहब्बत रखें। If a man is truly mindful of the authority that Christ has over him, the Bible tells us here in verse 29 that a man shouldn't hate his own flesh. Christ doesn't misuse the church. He doesn't abuse the church. He doesn't disrespect it. He does it because it is his wife. अगर हम 29 आयत का मुताला करते हैं तो उसमें लिखा है क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है जैसे मसीह के कलीसिया को। और आज हमें जरूरत है कि हम अपने किसी भी अज़ा को अगर हम दुख में देखते हैं तो हम बड़े परेशान होते हैं, हम बहुत परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। इसी तरह से सोचे कि हमारा खुदा जब हम परेशानी में देखता है क्या उसे परेशानी नहीं होती है क्योंकि खुदा जो है वो सबसे मोहब्बत रखता है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। So as we saw back in Genesis chapter 2, we also see right here in Ephesians 5:29, he says, what man hates his own flesh? The Bible prescribes that a man and a woman should come together and they should be one. So what man would disrespect himself? What man would disrespect his God and not love and not edify and not build up the life that God has gave him to be united as one? Just as the same way that Christ desires to build up, desires to edify, the same way that Christ gave his life for the church, his bride. अगर हमने पैदाइश की किताब का मुताला किया, इफ्सियों का किया, क्रंथियों की, हमने इसमें सीखा है कि अगर हम खुदा के साथ ईमानदारी के साथ चलते हैं तो खुदा हमें बहुत सी बरकत देता है। अगर हम खुदा के साथ ईमानदारी से नहीं चलते, खुदा के कलाम को नहीं समझते तो हम खुदा के साथ जो है वो खुदा के हुक्मों की हुक्मअमली करते हैं, खुदा को नहीं मानते। और इसी तरह से जो है शैतान जो है हमारी जिंदगी में काम करता है और हमें जरूरत है कि हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में अपनाएं। जैसा कि वर्स 29 में लिखा है क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है जैसा कि मसीह कलीसिया को। क्योंकि जब हमारे किसी अज़ा को तकलीफ पहुंचती है तो हमें दर्द होता है, हमें जरूरत होती है कि उसको जल्दी से जल्दी उसके लिए कुछ किया जाए। इसी तरह से मसीह खुदावंद भी हमें जब तकलीफ में देखता है, दर्द में देखता है तो वो परेशान होता है और हमारी वो परेशानी दूर करने की कुदरत रखता है, अजर रखता है। Yes, brother. So I pray that this message was a blessing upon your heart. As you put on your coverings, always be mindful
that first and foremost is because of the authority. It's to remind you of the authority that Christ has over you. And it also is a reminder of the responsibility that you have as women of God to give grace, give honor, give respect to your husbands who Christ has placed in position of authority over you. But never compromise your relationship with Christ. Never compromise the authority that Christ has over you when you're dealing with the disobedient or ungodly husband. I have to say that. आज के कलाम के वसीला से आपने जितनी भी बरकत दी आप उनको सीखें और ज़्यादा सीखने की कोशिश करें और कोशिश करें कि खुदा की एक ख्वाहिश को समझे कि खुदा आपकी ज़िंदगी में क्या काम करना चाहता है और अपने हस्बैंड्स की अपने शोहरों की इज्जत करें, उनको खुदा के कलाम के मुतल्लिक़ सिखाएं। जिस तरह से आप जो है अपने एक औरत जो है वो खामद की इज्जत करती है तो मर्द जो है वो अपने खुदा की करता है। इसी तरह से खुदा का अख्तियार जो है वो मर्द पर भी है और औरत पर भी है। खुदा सबसे इक्वल मोहब्बत रखता है, खुदा सबसे एक जैसी मोहब्बत रखता है। आज हमें ज़रूरत है कि हम सब जो है वो अपने आप को इस कलाम के वसीला से तैयार करें। और अगर किसी का कोई सवाल या कोई क्वेश्चन कोई करना चाहता है इसके मुतल्लिक़ तो वो पूछ सकता है, या कोई और मज़ीद इसके हवाला से कुछ पूछना चाहता है खुदा के कलाम के हवाला से, सर ढकने के हवाला से, औरतों की क्या जिम्मेदारी है उसके हवाला से, तो आप पूछ सकती हैं। All right. Because if your husband is mindful of the authority that Christ has over him, he will also be mindful that no man hates his own self. No man mistreats his own self. No man in his relationship with God would encourage his own self or his wife or his bride or the one he exercises authority over given to him by God to go contrary to the will of God. जिस तरह से खुदा ने हमें ये इख्तियार दिया है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ वफादार हैं तो खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे, और इसी तरह से आपका दिल जो है वो अपने हस्बैंड की तरफ रखे। और जब हम अपनी ईमानदारी के साथ, उससे दिल के साथ, हम वफादारी के साथ खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, तो खुदा जो है वो सारी इख्तियार रखने की कुदरत रखता है। So in that he has a responsibility to build you, to edify you, to pray with you, to teach you and share the word of God with you, to also go out and minister the things of God with you as well. और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने शोहरों को अपने पास बिठाएं, खुदा का कलाम जो है उनके साथ शेयर करें, और खुदा का कलाम जो है वो बैठकर सीखने की कोशिश किया करें। और कोशिश करें कि जब आप खुदा के कलाम को सीखती हैं तो अपने बच्चों को भी आगे खुदा का कलाम सिखाने की कोशिश करें ताकि वो अच्छी तरबियत पाएं। All right. So that's the lesson to everyone today. If anyone has any questions about today's lesson, we want to give a couple minutes to allow them. ये आज का हमारा लेसन था, आज का हमारा अनुमान था जो कि सर ढकने के हवाला से था। अगर किसी को भी इसके मुतल्लिक़ कोई और पूछने की ज़रूरत है तो वो पूछ सकता है। हम आपको चंद मिनट देते हैं, अगर कोई सोचना चाहता है या कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। All right. Questions? बहुत अच्छा कलाम। Zoom call has any questions about today's lesson? Yes, this sister. Okay. बहुत अच्छा मैसेज जो साडी सारी भैणां ਲਈ सुनाया गया है, ਅਸੀਂ अच्छे तरीके ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ है, बहुत अच्छा ਸੀ। इसका कलाम हर सिखाने ਲਈ। Amen. This sister is saying to me today message is very blessful for all women, and that's we have to follow the all scriptures in our life, and that we can change our husbands, our children, and our family. And that is a lesson, very blessing and powerful message. And we are very thank you to giving and sharing the word of God with us. And we all encourage each others every day, and we have a great passion for that. And sometimes sister is saying to me, sometime I said to my husband that to come with me and do read some Bibles, and then we teach our children as well. Amen. Amen. The Bible says that a believing wife sanctifies an unbelieving husband. So I thank God for her being wise and trying to encourage lovingly her husband towards the things of God. And all women should do that. Be patient with them, be gentle with them, but never stop encouraging them to engage in the things of God. जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक नेक औरत जो खुदा के साथ चलती है वो अपने खावंद को तब्दील कर सकती है। खुदा के कलाम के वसीला से वो अपने खावंद की जिंदगी को तब्दील कर सकती है खुदा का कलाम सुनाकर।
तो इसी तरह से अपनी हौसला अफजाई को जारी रखें, एक दूसरे के साथ जो है अपने खुदा के कलाम को शेयर करें, ताकि बहुत सी जिंदगी जो है वो तब्दील हो, आपका घराना तब्दील हो, आपके शोहर तब्दील हो, और आप मिलकर जो है वो खुदा का कलाम सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। यस ब्रदर। Amen, amen. And let her know, by the way, that her 1,000 rupees is transferred to your jazz cash. So whenever she's ready. आपका जो 1,000 रुपया है वो जल्दी आपको मिल जाएगा जैज कैश के जरिए। Yes, brother. Yep. So, thank God for listening today. Okay, brother. Let's pray for the women and for their wisdom and to receiving the word of God, and God gave them more strength, as well as every Wednesday they come and that welcome to the Jesus Christ world in our lives and change the lives and act upon the Holy Christ. All words. Amen. 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 Yes, brother. सभी अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, ऐ मेरे खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं इस सुनहरी कलाम के लिए। ऐ मेरे खुदा जिससे हमने आज बहुत कुछ सीखने को मिला है मेरे खुदा, इस कलाम के वसीला से बहुत सी बहनों की जिंदगियां तब्दील हों, बहुत ऐ मेरे खुदा इसी तरह से भाइयों की जिंदगियां भी ऐ मेरे खुदा तब्दील हों, ताकि वो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में अपनाएं, उसके मुताबिक वो अपनी जिंदगियों को टाल सकें। इस तरह से ऐ मेरे खुदा मैं अपनी बहनों के लिए दुआ करता हूँ जो है मेरे खुदा तेरे कलाम सुनने के मेरे खुदा तड़प रखती हैं, तो इनके जहनों को खोल है मेरे खुदा, इनको छू और मसा कर, ताकि मेरे खुदा तेरे कलाम को जब सुनती हैं तो उनको अपने दिलों में अपनाएं, ताकि तेरे कलाम के वसीला से वो अपने बच्चों को सिखा सकें, वो अपने हस्बैंड को सिखा सकें कि खुदा के कलाम के मुताबिक किस तरह से हमें चलने की जरूरत है और किस तरह से खुदा हमें बरकत से नवाजता है। ऐ मेरे मसीह खुदावन, तो तेरे कलाम के वसीला से है मेरे खुदा हमारी जिंदगियां तब्दील हो सकती हैं, और तू ही है मेरे खुदा हमें जिंदगी तब्दील करने वाला खुदा है। ऐ मेरे मसीह खुदा ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे और अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। Amen, amen. Thank God for all the women there. God bless you. Bless you. God bless you. Rahab, Brother Gufam, Sister Miriam. Yes. खुदा आप सबको बरकत दे। God bless you all. God bless you, brother. All right. And tell the woman of God that I pray that the Lord blesses her to cook a big meal or buy a pair of shoes or something for herself. Great answer. Okay. आपको 1,000 जो वो दे दिया जाएगा, आप उसका अच्छा खाना बनाएं या अपने लिए कोई शॉपिंग कर लें, ये आपकी मर्जी है। All right, Pastor Miguel. So you have the 1,000 in your jazz cash, and just get with her and be able to send. Okay, brother. Let the women know that we want to continue to encourage them to come, and we'll continue to do things to motivate their spirits and encourage them. Even though we know that the women in Pakistan are going through many hardships and challenges, that our prayers and our hearts are with them. Okay. इसी तरह से जैसे हम आज इकट्ठे हुए हैं, मैं आपकी हौसला अफजाई करता रहूंगा ताकि आपको और ज्यादा खुदा का कलाम सिखाया जाए, और हम सब जो है वो मिलकर खुदा के कलाम को सीखा करेंगे। Yes, I have arranged a refreshment for women today. You got tea? Yes. हाँ, ले आओ कितने? You got tea? Okay, brother. Yeah, tea break and some sweet. Where my tea at? I want some Pakistani tea and bread. Yes, tea break. Yeah. Wow. अरे खोलो दुआ कराइए। What do they call that? That is a sweet dish. What is it called? गुलाब जामुन इन्हों कहते सर। Yeah, I can't pronounce that. That's too much right there. Wow. Yes, pray. Oh wow. Yes, pray for that. Wow. Okay. That is sweet. Yeah, what's that? That looks awesome. मैं खा के दसा। Yes, pray for that, bro. Okay. Oh, Father God, in the name of Jesus, Lord God, we thank you today. We thank you for life, health, and strength. We thank you for the women of God who have assembled here today, Lord God. We pray that you ask a blessing upon their heart, Father God. We know that you hear the prayers of your people, Father God. Oh, Lord God, for we know that your arm is not too short, Father God. We know that दुआ कराना चाहता है?
not too far away from us, Father God. Bless them, Father God. Keep them, motivate their spirit, Lord God, whatever they might be doing, whatever they might be doing. Well, Father God, we know that the Bible says that you hear the prayers of Lord God, the Spirit of God, you have been to God, Father God, on behalf of the benefit. God, just bless them. Father God, we pray that the Lord just had a blessing. That the word of God is hid deep in their heart. We love you, we honor you, we adore you. Let every word from our mouth and let the meditation of our heart. खड़ी हो जाए जिसने दुआ करानी our strength and our Redeemer. Let all those who love the Lord say, Amen. Amen. Pray for this woman. Okay. She's want to pray. खड़े हो जाए सारे ले आंसर खड़े हो जाए हैं बेटे वास्ते. This sister, she has no baby, son, boy, and she want to pray for his boy, his baby. So she's doesn't have a child. She has a girl and she want to birth a baby. She wants a boy. Okay. Yeah. Oh Lord God, in the name of Jesus, Father God, we come before you on behalf of this woman of God, Father God. You know her heart, you know her petitions, Lord God. You know the trials and tribulations and issues of her life, Father God. You said in your word, Lord God, that anything that we ask, Father God, that you would give it, Father God. Oh Lord God, what father, Father God, is asked by his child to give him a slice of bread and he gives him a stone, Father God. So Lord God, you know her heart, you know her desires, Father God. Her desires to have a man of God that she can raise up in a way that he should not depart, to teach the things of God. Father God, that he might be a mighty prophet, a mighty man of God to the nation of Pakistan, Father God, that he might win many souls for you, Lord God, on behalf of your son Jesus, Father God. So Lord God, we ask that you just grant this petition if it be your will, Father God. Lord God, allow her to be able to bring forth a child, which you said in your word is a blessing, Father God. It is a blessing from you, Father God, to bring forth a child into this world, Father God. But every man, Lord God, every woman, Lord God, desires to be able to birth a young man that he might grow up and be big and strong, Father God. So bless the fruit of her womb, Father God. Bless her, Father God, in her petitions, Lord God. Bless her, Lord God, in each and every desire of her heart, Father God. But at the end of the day, Lord God, not our will, but let your will be done. In Jesus' name I pray. Amen, amen, amen. Amen. Pray for all women. All women, all women. Yes. Amen. Thank you, Lord God. Okay. Many women have a different problem and to pray for all equally. Okay. Oh Lord God, in the name of Jesus, Father God. आंखें बंद करें, सबके लिए दुआ हो रही है. Yes, brother. Continue. Lord God, in the name of Jesus, we come before you right now, Father God. Lord God, you know each and every heart's desire right now, Father God. Oh Lord God, you have every tear, Father God, every cry, every petition, Father God, in a bottle which you hold dear to you, Father God. Oh Lord, we ask that you just touch each and every heart, each and every mind, whatever the situation might be in their respective places. Oh Lord God, go into each and every household that is represented here today, Father God. We know that there are many afflictions of the women of Pakistan, Father God. But oh Lord God, you be their strength. You be their guide, Father God. You be their provider, Father God, in this time of need, Father God. In the name of Jesus, Lord God, we bind up the spirit, Father God, that the enemy has planned a plot to speak against them, Father God. Oh Lord God, you said in your word, trust not your anointed, and do your prophets no harm, Father God. Oh Lord God, we ask that you send forth your angels, Lord God, to minister to their needs, to minister to their desires, Father God. Let them be able to encourage themselves in you, Lord God, no matter what the situation might be, no matter what the circumstance might be, Father God. Oh Lord God, we bind up just anything, Father God, that is not of you or not like you, Father God. In the name of Jesus, Father God, we declare and decree right now peace, prosperity, longevity, happiness, Father God, joy, Father God. Let us manifest the fruits of your spirit, Father God, not only just working in our lives, Father God, but they that might become contagious, that they might rub off upon someone else, Father God. Oh Lord God, we just trust you today. We believe in you today, Father God. Help us to Lord God. Oh Lord God, we thank you, we honor you, we adore you. In Jesus' precious name, Father God, just bless these women, Father God. Be there with them, Father God. Reveal your mighty hand, Father God, in and upon their lives. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Amen.
God bless. Amen. Amen. Tell all of the women of God, I thank God for them. Is that Sansa? No, that's not Sansa. I thank God for them, and just continue to encourage. Encourage yourself in the Lord, and never ever forget that the Bible says in the book of Joshua chapter 1 that He will never leave you nor forsake you. No matter what you're going through, no matter what the situation might be, God is always right there with you. Okay, brother. Thank you so much for encouraging and for sharing the word of God with us. And women are so excited today, and they will come every Wednesday with great passion and with great soul, and ready to always to giving the answer of question. Yeah, tell her to save me a sweet. Save me a sweet. Yeah. All right, my brother. I love you. God bless you. I love you. God bless you. I love you, my dear. I love you, my dear. Sister Adam. I love you, baby. God bless you, God bless. God bless. God bless. हाँ जी भाजी